I believe that the best thing about learning is that no one can take it away from you. So guys, we are here to be a part of your learning. Hello everyone, how are you? I hope that you all are good and carrying on with your studies and utilizing your time in this COVID-19 crisis. I am Devansh, your geography trainer over here. I welcome you all to our channel, Graduate Yourself. It's a unique platform of service of the students, service for the students, and service by the students. I know, guys, you all are working very hard these days, and so as our team also, so that we can come up with our best. So, as you all know, that last Monday I have initiated a new lecture series in human geography, that is settlement geography, which will contain all major stuffs regarding the human settlements. So basically in last video we have discussed the topics like what is settlement, origin of settlements, and the very basic classification of settlements into the rural as well as urban. So guys, if you have not seen them, then please go and watch it. The links have been provided to you in the description so that you are able to absorb today's lecture properly. Alright guys, so today we are going to learn types of rural settlements, functions of rural settlements, and patterns of rural settlements. So these are very interesting topics regarding the settlement, and I personally assure you guys that after watching this video lecture, your each and every doubt regarding the settlement will finish. And if you have any, then you can let me know in the comment section and our team will reach you and definitely help you out. It's my humble request that please stay tuned with us till the end of the lecture so that you are able to gather all the stuffs and information properly. Alright friends, so without wasting any more time, let's get started. Alright guys, starting with the types of रूरल सेटलमेंट्स, यानी जो ग्रामीण अधिवास हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, आइए उनको जानते हैं क्या उनका क्लासिफिकेशन है. सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेटलमेंट्स आर रूरल एंड दे आर स्टेबल एंड परमानेंट. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक of the world's rural settlement. It means that they are maximum in number as compared to the urban settlements, and their nature are stable and permanent. It means that they are very rigid in nature. Okay, there are three types of rural settlements. What are they? First is the compact, clustered or nucleated settlement. Second is the semi-compact, semi-clustered or fragmented settlement, and the third one is the dispersed settlement. Okay, so now let us know each of them in detail. Starting with the very first one, that is the compact or nucleated settlements. So you can have a glance at the picture which is being provided to you, that these are of two things, that is the rural compact settlement and urban compact settlement. Okay, so as the name suggests, these settlements have closely built up area. Therefore, in such settlements, all the dwellings are concentrated in one central site, and these inhabited areas is distinct and separated from the farms and pastures. जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड. ओके, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या टाइटली पैक्ड. इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस इज मिनिमम or very less in these types of settlements, and they are very congested in nature. Okay, therefore in such settlements all the dwellings are concentrated in one central site. Exactly, all the dwellings and all the houses or the buildings and structures, these are concentrated at one central site. Means they are not very far away or not very dispersed in nature. Okay, and these inhabited area is distinct and separated from the farms and pastures. Okay, it means that they are somewhat very separate from the farms and pastures. Basically खेत खलियान या basically जो आपके pastures land हो गए उनसे काफ़ी दूर हैं और उसके nature से भी काफ़ी distinct हैं in terms of their concentration and nature.
as well as they are having a very close built up area. Okay, now let us move back to the image. So basically आप इस इमेज में क्या देख पा रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स या हाउसेस बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड डेंस हैं. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. जैसे कि किसी एटम में न्यूक्लियस होता है ना, तो उसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. सो सेम एज इन दिस केस ऑल्सो, द बिल्डिंग्स एंड हाउसेज दीज आर टाइटली packed and concentrated in one center, which seems to be claustrophobic in nature. अभी आगे हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं. So the maximum settlements of our country comes under this category. They are spread over almost every part of the country. हमारे कंट्री की जो ज़्यादातर सेटलमेंट्स या अधिवास हैं बेसिकली वो इसी कैटेगरी यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के अंतर्गत ही आती हैं. एंड दे आर स्प्रेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. ये आपको जनरली हर जगह देखने को मिली जाएंगी बिकॉज दीज आर वेरी वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. तो आइए देखते हैं कि ये सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ लोकलाइज्ड हैं. सो दीज सेटलमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर नॉर्दर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन, right from Punjab in the northwest to West Bengal in the east, Orissa coast, basins of Mahanadi in Chhattisgarh, coastal areas of Andhra Pradesh, Kaveri Delta of Tamil Nadu, Maidus of Karnataka, Lower Assam and Tripura in the valleys of Shivaliks, etc. Okay, so here you can get the idea exactly that how these settlements are spread along the लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया. आपका जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो पूरा फर्टाइल ट्रैक्ट हो गया है जो कि एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, तो ये सेटलमेंट्स वहाँ पाई जा रही हैं. आप पंजाब वाला पूरा रीजन कंसिडर कर सकते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया. एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट यानी ईस्ट में जो आपका पश्चिम बंगाल वाला पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है. उड़ीसा का कोस्टल प्लेन्स भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं, आपका उड़ीसा का कोस्ट हो गया. एंड बेसिन्स ऑफ महानदी इन छत्तीसगढ़ एज वेल एज द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज हो गए. कावेरी डेल्टा ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा के आसपास. मायदूज ऑफ कर्नाटका, okay, and lower Assam and Tripura as well as lower Assam and Tripura, मतलब असम और त्रिपुरा के साथ साथ जो शिवालिक्स की वैलीज़ हैं आपकी बेसिकली जो लेसर हिमालयाज़ हो गए आपके साउथवर्ड पोर्शन वाले, तो ये वहाँ पे भी लोकलाइज्ड हैं ये सेटलमेंट्स. Okay, so the size of these settlements depends on the nature and resources of surrounding country. तो दोस्तों इन सेटलमेंट्स की साइज़ जो है वो इस बात पे निर्भर करती है कि जो सराउंडिंग कंट्रीज़ या सराउंडिंग एरियाज़ हैं, आसपास के जो भी एरिया या जैसे भी आपका डोमेन है ये कह लीजिए, तो उनका नेचर और रिसोर्सेस कैसे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ द सराउंडिंग एरिया इज़ हैविंग अ रिसोर्स रिच रीजन, then you will definitely find out these cluster over there. Okay, now moving on. Sometimes people live in compact settlement for security or defense purpose. The greatest example of this type is in Bundelkhand region of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. ओके, तो बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस पर्पस से लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं. उसका एक जो बड़ा या मेजर रीज़न माना गया है दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे फील लाइक इफ दे आर लिविंग इन अ कम्युनिटी और अ डेंस रीजन एज अ होल, देन दे आर मोर सेफ और प्रोटेक्टेड एज इन अनदर एरिया विच इज़ ऑपोजिट टू दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट, दैट इज़ इट कैन बी डिस्पोज्ड इन नेचर. And you will see this greatest example in the case of Bundelkhand region of the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. तो जो बेसिकली आपका बुंदेलखंड प्लेटो वाला रीजन आता है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सदर्न बॉर्डर को और मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न बॉर्डर को मिला के बनता है पूरा, तो वो आपका बुंदेलखंड प्लेटो वाला रीजन है बेसिकली. तो यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे. Okay, now moving on. In Rajasthan also people live in compact settlement because of the scarce availability of cultivable land and water body. Therefore, they want to make maximum use of available natural resources.
ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि राजस्थान में भी बेसिकली ऐसे सेटलमेंट पाए जा रहे हैं और लोग वहाँ रहना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बेसिकली एक ऐसा सूखा एरिया पड़ता है हमारे इंडिया का, where a lot of greenery and lot of pastures or agriculture is not possible because of the scarce vegetation over there, and because of non availability of the cultivable land and water body. इसका मतलब किसी भी वाटर सोर्स या कृषि उपयोगी भूमि का बहुत ज़्यादा मात्रा में ना प्रेजेंट होने का ये भी एक कारण है कि वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहना पसंद कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या फर्टाइल एरिया या फर्टाइल ट्रैक्ट पाया जा रहा है वो एक बहुत ही कम एरिया में लोकलाइज्ड है। इस वजह से लोग उसका ऑप्टिमम यूज़ या मैक्सिमम यूज़ करने के लिए उसके अराउंड ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उस राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। तो जब वो ऐसे रिसोर्सफुल रीजन के पास रहेंगे तो देन दे विल एंड अप बिल्डिंग द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। तो बेसिकली ये था ऑल अबाउट द कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर टू द सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑल राइट गाइस, सो you can have a glance towards the picture which has been shown on the screen regarding the semi-compact or semi-nucleated settlements. So, what is semi-compact or semi-nucleated settlement? As the name suggests, the dwelling or houses are not well knitted. Such settlements are characterized by a small but compact nucleus around which hamlets are dispersed. तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि द ड्वेलिंग्स और हाउसेस आर नॉट वेल निटेड, मतलब आपस में बहुत ही ज़्यादा वेल निटेड यानी बहुत अच्छे से टाइटली पैक्ड, कंजेस्टेड या बंधे हुए नहीं हैं। As in the compact settlement, what we were having the well knitted, tightly packed and concentrated and congested settlements, okay, whereas in this case we are not having very well knitted structures or dwellings and houses over here. ऑल इन ऑल कहने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो भी ड्वेलिंग्स या हाउसेस यहाँ पाए जा रहे हैं उनमें आपस में जो भी डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि जो सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है। ओके, तो उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगी। दैट्स वाई द नेम इज़ द सेमी कॉम्पैक्ट। सच सेटलमेंट्स आर characterized by a small but compact nucleus around which the hamlets are dispersed. इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक ऐसा कॉम्पैक्ट या छोटा पॉइंट होगा जिसके अराउंड बाकी हैमलेट्स इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अ टाउन, तो जिसके अराउंड बाकी हैमलेट्स या ड्वेलिंग्स आपके डिस्पर्स्ड या लोकलाइज्ड होंगे। सो इट विल मेक द स्ट्रक्चर सच एज एन दैट ऑफ अ एटम, such as the nucleus in center and all the electrons revolving around it. जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि जो भी ड्वेलिंग्स या हाउसेस हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली या वेल निटेड, टाइटली पैक्ड या कंजेस्टेड नहीं है, वो एक दूसरे से दूर हैं। हाँ, लेकिन कुछ जगह पे वो लोकलाइज्ड या बेसिकली डिस्पर्स्ड ज़रूर हैं। Okay, so it covers more area than the compact settlements. सीधी सी बात है, क्योंकि जब हाउसेस या ड्वेलिंग्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ेगी तो जो इसका ओवरऑल एरिया है उसका भी एक्सपेंशन होगा। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट इट विल कवर मोर एरिया दैन द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बिकॉज ऑफ मोर एक्सपेंशन एंड लेस कंजेशन। These settlements are found both in plains and plateaus depending upon the environmental conditions prevailing in that area. इसका मतलब कि ये जो सेटलमेंट हैं ये प्लेन्स एंड प्लेट्यू यानी मैदानी इलाकों के साथ साथ आपके पठार वाली जगहों पे भी लोकलाइज्ड हो सकते हैं, ये वहाँ भी पाए जाएंगे। और ये डिपेंड कर सकता है कि वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं जो कि बेसिकली इसे ट्रिगर करेंगी।
As you can see in the case of our seven sister states, that is the northeast of our country, because the environmental conditions prevailing over there are very good and very favorable, so basically they will definitely have this type of settlement which is semi compact or semi nucleated in nature. Okay, so moving on, such settlements are situated along streams in Manipur, Mandla and Balaghat districts of Madhya Pradesh and Rajgarh district of Chhattisgarh. Different tribal groups inhabit such settlements in the Chota Nagpur region. तो बेसिकली आपके मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जैसे कि मणिपुर, मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर ऑफ मध्य एमपी. सो बेसिकली यहाँ पाए जाएंगे ऐसे सेटलमेंट्स, यानी सेंट्रल इंडिया का पार्ट भी हो गया आपका. एज वेल एज द राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में भी पाए जा रहे हैं. एंड द डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स इनहेबिट सच सेटलमेंट्स इन द छोटा नागपुर रीजन. इसका मतलब जो आपका छोटा नागपुर प्लेटो वाला जो पूरा रीजन हो गया, विच विल कवर एरियाज ऑफ द झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़. तो इन एरियाज में बेसिकली जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं यानी जो जनजातियां हैं, तो वो इन सेटलमेंट्स को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं या इनहेबिट कहती हैं. ओके, सो मूविंग ऑन, इन द ईस्ट ऑफ अरावलीज इन हिली ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, in the Shivaliks valley of Brahmaputra, one may observe numerous semi-compact settlements. जी हाँ दोस्तों, जो आपका पूरा अरावली वाला पोर्शन हो गया, यानी जो कि दिल्ली के पास से होते हुए आपका पूरा सदर्न हरियाणा, राजस्थान से होते हुए गुजरात में एंड होता है, तो इन एरियाज़ के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका है, जो हिली ट्रैक्ट्स हो गया, वहाँ पे आप ये सेटलमेंट्स देख सकते हैं, वहाँ पे ये लोकलाइज्ड होंगी. और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे सेवन सिस्टर स्टेट्स हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, वो इसमें मेंशन भी है. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम. सो हियर you will definitely see a large number of semi-compact settlements. इसी के साथ साथ जो शिवालिक वाला पोर्शन है और जो ब्रह्मपुत्र और शिवालिक वाली घाटियां हैं, उनके आसपास भी ये सेटलमेंट्स आपको लोकलाइज्ड मिलेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन, इन नागालैंड सच सेटलमेंट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लशिंग विलेजेस. जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की जो भूमि है उस पर आपको इस तरह के सेटलमेंट्स बहुत ही सुंदर विलेजेस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, एज शोन ओवर हेयर इन द इमेजेस. तो दोस्तों, ये था हमारा सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज द डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. Okay guys, please have a look towards the image of the dispersed settlement which is being projected on your screen. Now moving on towards what is the dispersed settlements. Okay, let us know. This is also known as isolated settlements. Here the settlement is characterized by the units of a small size which may consist of a single house to a small group of houses. It varies from 2 or 7 huts. तो बेसिकली इसको आइसोलेटेड सेटलमेंट क्यों कहा गया है, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि किसी भी स्टेट या प्रोविंस के एक बहुत ही लार्जर सेक्शन या लार्जर पोर्शन से ये कट ऑफ होते हैं और एक आइसोलेटेड, एक थोड़ा सा शहर या भीड़ भाड़ से दूर वाली एरिया में पाए जा रहे हैं. Here the settlement is characterized by the small units. ओके, तो बेसिकली ओवरऑल इस सेटलमेंट में बहुत ही छोटे छोटे साइज के यूनिट्स पाए जा रहे हैं, जिसमें एक हाउस यानी सिंगल ड्वेलिंग से लेके एक स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेस तक ये वेरी कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम 2 और 7 हट्स. मतलब
यहाँ पास बहुत ही कम डेंसिटी होने वाली है सेटलमेंट्स की, इन द सेंस हाउसिंग की एंड एकोमोडेशन, और जितनी भी ड्वेलिंग्स होने वाली हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाएंगी. यू कैन काउंट इट ऑन द फिंगर लाइक द सेम. तो ये है बेसिकली डिस्पर्स सेटलमेंट, जो कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या सेमी कॉम्पैक्ट के पूरी तरह से ऑपोजिट है इन द सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी. Now, moving on. Therefore, in this type, hamlets are scattered over a vast area and does not have any specific pattern. तो दोस्तों, डिस्पर्स सेटलमेंट के केस में हो क्या रहा है कि जो भी आपके हैमलेट्स या ड्वेलिंग्स वगैरह हैं, दे आर स्कैटर्ड ओवर अ वास्ट एरिया. वो एक बहुत ही बड़े से लैंड पे एक्सपैंड हैं या स्कैटर्ड हैं, यानी आपस में दूर दूर हैं. That's why they does not form any specific pattern. तो इनके थ्रू एक स्पेसिफिक पैटर्न निकाल पाना इस सेटलमेंट का काफ़ी मुश्किल काम है. तो आइए अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर दे फाउंड एंड वेयर आर दे लोकलाइज्ड. सो दीज आर जनरली फाउंड इन हिल्स, प्लेटोज एंड ग्रासलैंड्स. इसका मतलब कि ये पहाड़ी इलाकों के साथ साथ आपके प्लेटो यानी पठार वाले इलाके हो गए एंड ग्रासलैंड्स वाले एरिया में भी पाए जा रहे हैं. जैसे कि जो फेमस ग्रासलैंड्स हैं आपके, सच एज द स्टेपे ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, प्रेरीज ऑफ यूएसए, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी ऑफ न्यूजीलैंड, सवाना ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टैगा ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड द सेल्विस ऑफ साउथ अमेरिका. जो ये सारे ग्रासलैंड्स मैंने आपको बताए, यू विल मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड मैक्सिमम टाइम यू विल ऑब्जर्व द डिस्पर्स सेटलमेंट्स ओवर देयर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द ग्रासलैंड्स, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ all of you suggest, then I will definitely make a video on the grasslands of the world. Now, moving on, these are generally found in the areas of extreme climates, hilly tracts, thick forests, grasslands, poor agricultural lands, areas of extensive cultivation, and where it is essential that the farmer should live on his own land. Overpopulation is one of the reasons for the dispersed settlement. तो ज़्यादातर ये पाए जा रहे हैं इन द रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. ओके, जहाँ पास क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो एंड सच एज वेरी कोल्ड और वेरी हॉट और वेरी स्टॉर्मी ओवर देयर. एंड हिली ट्रैक्ट्स, आपके जो पहाड़ी इलाका हो गया, थिक फॉरेस्ट्स सच एज द रीजन्स ऑफ द ब्राज़ील एंड यू नो अफ्रीका एज वेल. ग्रासलैंड्स हो गए आपके, पुअर एग्रीकल्चरल लैंड्स हो गए, मीन्स द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट वेरी वेल ओवर देयर. इसमें आपके डेजर्ट वाले पोर्शन भी आ जाएंगे. एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कल्टिवेशन, ओके, एंड वेयर इट इज़ एसेंशियल दैट फार्मर शुड लिव ऑन हिज ओन लैंड. और साथ ही साथ ये ऐसी जगह भी पाए जा रहे हैं जहाँ पास ऐसा ज़रूरी हो कि जो अपना किसान है या फार्मर है वो उसी लैंड पे रह रहा हो जहाँ पे उसने कल्टिवेशन कर रखा है. क्योंकि सीधी सी बात है, जब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होने वाली हैं आपकी, जो कि फिज़िकल कंडीशंस हो गई, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं करेगा. दैट्स द रीज़न वाई द डिस्पर्स सेटलमेंट इज़ फाउंड ओवर देयर, वेयर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज dwellings is very less as compared to the compact and semi-compact settlements. Guys, overpopulation is one of the chief reasons for the dispersed settlement. जो आपका जनसंख्या घनत्व है या आपका पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, जब वो किसी रीजन में हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो बेसिकली पीपल who feel congested over there, and so they start moving out from there in order to settle in areas which has relatively less density of population and settlement. For them, the dispersed settlement is the best destination, and for the same reason we are having a very increasing number, or very fast growing number of the dispersed settlement nowadays.
मूविंग ऑन, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर रिलेटिवली रिसेंट इन एज। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको फैक्टर अभी बताया कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से कैसे ये डिस्पर्स सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं आज के समय में, तो बेसिकली आप इसको रिलेट कर पाएंगे इससे। द ओके, सो वेयर दे आर फाउंड इन द स्टेपे ग्रासलैंड्स ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था दोस्तों ग्रासलैंड्स का कि ये जहाँ पे लोकलाइज्ड हैं, तो सेम आप इसे भी कंसिडर करके देख सकते हैं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आइए देखते हैं ये इंडिया में कहाँ लोकलाइज्ड हैं। ओके, सच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन ट्राइबल एरियाज ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया कवरिंग छोटा नागपुर प्लेटो, मध्य प्रदेश, राजस्थान एटसेट्रा। Such patterns are also common in the hills of North Bengal, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu and Kerala. तो दोस्तों इंडिया में बेसिकली ये पाए जा रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में, आपके यानी जो जनजातीय समाज जहाँ रह रहा है, साथ ही साथ जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन हो ही गया, एंड राजस्थान एक्सेट्रा। और साथ ही साथ ये जो पैटर्न है सेटलमेंट का, ये आपको बहुत ही कॉमनली मिल जाएगा इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ बंगाल, बंगाल का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसमें जो पहाड़ी इलाका है वहाँ आपको मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा क्योंकि बेसिकली वहाँ भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं आपकी, जैसे कि आपका गुज्जर, बकरवाल्स एंड भोटिया एंड ऑल दीज, सो दे मोस्टली लिव इन दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। एंड तमिलनाडु वाला पोर्शन आपका हो गया, साथ ही साथ केरला में भी ये सेटलमेंट्स लोकलाइज्ड हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली डिस्पर्स सेटलमेंट्स। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स जंप टू द फंक्शंस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। इसका मतलब ये जो हमारे ग्रामीण अधिवास हैं उनमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, या जो रूरल पॉपुलेशन है किन कामों में इंगेज है और साथ ही साथ एम्प्लॉयड है। नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस टुवर्ड इट। द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड are engaged and dependent on various primary occupations such as the agriculture, dairying, animal husbandry, fisheries, forestry and mining। इसमें बेसिकली दोस्तों आपको एक आइडिया देने की कोशिश की गई है कि the rural population is engaged in which type of activities, which is the basic source of their income. Well, they are dependent on various primary occupations such as agriculture. Yes, agriculture is one of the major and the dominant form of the primary activity among the rural settlements or rural population. एग्रीकल्चर में दोस्तों आपकी जितनी भी तरह की खेती बाड़ी होती हैं, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग एज वेल एज कमर्शियल फार्मिंग, वो इसमें इंक्लूड होगी। देन वी आर हैविंग डेयरिंग। डेयरिंग इज बेसिकली डीलिंग इन दी मिल्क प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल्स सच एज द काउज, बफलोज एंड गोट्स एक्सेट्रा. So a farmer used to sell that products in the market and gain the economic profits. Third one is the animal husbandry, या जिससे हम basically पशुपालन भी कहते हैं, which is the management and domestication of the animals on very large scale for the purpose, for some purpose, for it could be purpose of the economic profit or for the purpose of a business and survival. So in animal husbandry, the animal could be raised for various purposes such as for meat, milk, fiber and various other products. Then we are having fisheries, जिसे हम मत्स्य पालन भी कहते हैं, बेसिकली ट्रेड के पर्पज से ही किया जाता है। As we all know that the fish market is having a very large scope in India, that's why the people used to practice the fisheries in the rural areas. Then we are having forestry. So forestry is the science and craft of creating, managing, using, conserving and repairing the forests, woodlands and associated resources for human and environmental benefits, so that humans are able to get various resources as well as conservation from the environment, as well as forest
That's why the forestry is a very popular activity among the rural population. Last one is the mining. So guys, what is mining? Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth, usually from a ore or a placer deposit. Then these products are further processed for the purpose of economic benefit. तो ओवरऑल इसका मतलब यही हुआ कि जो भी मिनरल्स या खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं अर्थ में, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको एक यूजेबल में कन्वर्ट करके उसको एज अ प्रोडक्ट सेल किया जाए. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज द माइनिंग. Now moving on, the village panchayats in India and village councils in other countries perform some administrative and judicial functions as well. अगर गांव की बात करें दोस्तों, तो उस लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार होती है एट द ग्राउंड लेवल, वो बेसिकली एक पंचायत के फॉर्म में होती है या वो ग्रामीण परिषद के रूप में होती है. बाकी कंट्रीज़ में ये विलेज काउंसिल्स ही पाई जाती हैं, लेकिन हमारे कंट्रीज़ में विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली इनके अंडर में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल टास्क्स या फंक्शंस आते हैं. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट. So guys, these are the basically the functions of the rural settlements which I have told you. Just go through it and you will have a better idea. Okay, so now moving on, we will be dealing with the patterns of rural settlement. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी रूरल सेटलमेंट्स पाई जा रही हैं वो किसी डेफिनेट शेप में या किसी डेफिनेट पैटर्न को फॉर्म कर रही होंगी. वो कौन कौन से पैटर्न हैं और क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं. ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन वन हाउस और बिल्डिंग एंड अनदर. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी सेटलमेंट के पैटर्न को हम तब डिटरमाइन कर सकते हैं जब उसमें प्रेजेंट हाउसेस, ड्वेलिंग्स या बिल्डिंग्स के आपस के इंटर रिलेशनशिप को हम स्टडी करें. So, the pattern of settlement may be easily identified by reading and observing a large-scale map like that of the topographical maps which are prepared by the Survey of India. दोस्तों, किसी भी settlement के पैटर्न या शेप को अगर हमें स्टडी करना है तो for that purpose we need to read and observe the large-scale map of that area. Okay, such as that which is prepared by the Survey of India for the same purpose. It means that if you are provided with the large scale map of any area and so that in that condition you are perfectly able to study the settlement and identify its shape and various other dimensions easily. Alright, so the rural settlements have different shapes and sizes. The site of the village and the surrounding topography and terrain influence the shape and size of a village. जो आपके रूरल सेटलमेंट्स होते हैं यानी ग्रामीण अधिवास, दे एग्जिबिट द वेरियस शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग शेप्स और साइज़ या अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि आगे हम इसमें डेफिनेटली देखने वाले हैं. इसके पीछे डिटरमाइनिंग या डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो है द साइट ऑफ द विलेज. इट मीन्स द ओवरऑल लोकेशन वेयर द सेटलमेंट इज सपोज टू बी फाउंड. द सराउंडिंग टोपोग्राफी यानी आसपास की जो टोपोग्राफी है, लैंड कैसा है, यानी इरेगुलर है या इरेगुलर सरफेस है, आपका प्लेन्स है या प्लेटोज है, बहुत हद तक इस बात पे भी निर्भर करता है कि कैसा शेप या कैसा साइज़ मिलने वाला है किसी भी एरिया में रूरल सेटलमेंट का. So, like this, the topography and terrain influence the shape and size of that village. Alright, so moving on. In fact, the pattern of rural settlement is the result of a series of adjustments to the environment. Moreover, socio-cultural factors such as caste structure of the people living in a village and the functional needs of the people also have a close bearing on its shape and size. तो बेसिकली इसमें यह बात बताई गई है कि जो रूरल सेटलमेंट का जो भी पैटर्न है
वो पैटर्न जब इवॉल्व हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट्स टू द इन्वायरमेंट, यानी आसपास के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए उस तरह का पर्टिकुलर पैटर्न इवॉल्व हुआ है। एंड अगर नहीं भी हुआ है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने अपने आप को इस फॉर्म में एडजस्ट किया है। इसी के साथ साथ मोरओवर द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, कई सारे जो हमारे सामाजिक एवं कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, सच एज कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल, यानी आपस में जात और तमाम चीज़ें, ऑफ द पीपल लिविंग इन अ विलेज, एंड द फंक्शनल नीड्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी फंक्शनल नीड्स हैं। दीज फैक्टर्स ऑल्सो हैव अ क्लोज बियरिंग, मीन्स द क्लोज इफेक्ट एंड very influencing nature on the shape and size of the rural settlement as well as the pattern. I hope you are getting my points. Now we are coming to the core content of the pattern of settlements, pattern of rural settlements. So here we go. The rural settlements may be broadly classified under the following patterns. तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं, या जो रूरल सेटलमेंट्स है उनको किस किस पैटर्न में क्लासीफाई किया गया है। आइए इनको देखते हैं। सो फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज द रेक्टेंगुलर पैटर्न, सेकेंड इज द लीनियर पैटर्न, थर्ड इज द सर्क्यूलर and semi-circular pattern, fourth is the star-like pattern, fifth is triangular pattern, and the sixth one is the nebular pattern. Now let's see each of these patterns in some detail and know what are the features and the characteristics associated with it. Alright guys, so the very first we are having is the rectangular pattern. A figure has been provided here for your better understanding of the rectangular pattern. Just see it so that you can exactly have an idea how exactly the rectangular pattern looks like. Now the very first fact about the rectangular pattern is that the most of the people inhabit the settlements of rectangular pattern. जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादातर लोग हैं जो कि रूरल सेटलमेंट में रह रहे हैं, दे इनहेबिट द रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। वो ज़्यादातर ऐसे ही सेटलमेंट के पैटर्न में रह रहे हैं विच इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप और नेचर। All in all, we can say that this is the most common and frequently occurring pattern among the rural settlements. Okay, so rectangular settlements mainly develop in productive alluvial plains. जो प्रोडक्टिव यानी फर्टाइल एलुवियल प्लेन वाला पूरा ट्रैक्ट है या एरिया है, दैट इज़ दी ऑफ इंटायर नॉर्दर्न इंडिया, अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो हेयर यू आर एबल टू सी the rectangular settlements very often, and they mainly develop in or around these areas. Let me give you some examples also of other nations of the world, such as the well-planned settlements of Germany, Russia, Central Asian republics, China, North and South Korea, Vietnam, Malaysia, Israel and France also fall under this category. ये जितने भी कंट्रीज़ मैंने आपको बताए, they are having a very well planned rectangular pattern of the rural settlements. तो आप इसे एक बार देखिएगा. Now moving on to the second pattern, which is the linear pattern of rural settlement. Okay, so in the linear settlements, houses are arranged along either side of road, रेलवे लाइन, रिवर और कैनाल. इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि इमेज में भी शो कर रहा है, दी हाउसेस और द सेटलमेंट्स, इट इज़ अरेंज अलॉन्ग अ लाइन. बेसिकली एक लाइन में अरेंज होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होती है. एंड फॉर एग्जांपल इफ रोड इज़ देयर, देन द सेटलमेंट्स एंड द हाउसेस विल बी अरेंज ऑन इट्स ईदर साइड, यानी दोनों तरफ आपको घर मिलेंगे. वो रोड के दोनों तरफ हो सकते हैं, या रेलवे लाइन भी हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है, या कोई कैनाल भी हो सकती है. सो इट कैन वेरी.
For proper visual, you can also have a glance towards the image which has been provided to you, so that you can get an idea of what exactly the linear pattern is. Now let's see where they are found. Such settlements are numerous in the Middle Himalayas, Alps, Rockies, Andes, Pamir, Hind Kush, Shivaliks, and along the roads in the plain of Ganga, Yamuna, Doab. तो दोस्तों, ये सेटलमेंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने के लिए मिलेंगे इन द एरियाज़ ऑफ द मिडिल हिमालयास, यानी जो आपका हिमाचल वाला पोर्शन है, साथ ही साथ एल्प्स जो कि पूरी माउंटेन रेंजेस हैं, रॉकीज अगेन द सेम थिंग, एंड द एंडस विच इज़ ऑफ द साउथ अमेरिका। पामिर इज़ बेसिकली द नॉट, पामिर एक नॉट है यानी चोटी है, हिंदकुश एंड शिवालिक्स माउंटेन रेंजेस, and along the roads in the plain of Ganga, Yamuna, Doab. So in these areas you will very frequently see the linear pattern of settlement. Alright guys, so next is the circular and semicircular pattern of settlement. Now you can see over here in the figure how the shape of pattern actually resembles the circular shape and semicircle shape. Okay, since the people prefer to stay near the water, they construct their houses along the coasts. Such settlements acquire the circular or semicircular shapes. As we all know that the water is very basic necessity and indispensable object for the survival. That is the reason why most of the people as well as population prefer to live near the site of the water. So when they live near the water body, they construct their houses and dwellings along that coast or that water body. It could be lake, ponds, or well. So such settlements, they acquire the semicircular or the circular shapes. किसी भी वाटर बॉडी के अराउंड कोई भी जब सेटलमेंट होगी या हाउसेस और ड्वेलिंग्स का कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो एक सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप में ही ज़्यादातर देखने को हमें मिलेगा. So the main occupation of the people of circular settlements is to earn their livelihood from the water, either by catching fish or by providing the services to the recreators, picnic goers and aesthetic beauty lovers. अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, जो लोग सर्कुलर सेटलमेंट में रह रहे हैं तो बेसिकली किस टाइप के काम में एम्प्लॉयड हैं, तो जो उनकी लिवलीहुड है वो बेसिकली कहाँ से अर्न कर पा रहे हैं? वो अर्न कर पा रहे हैं वाटर से रिलेटेड जितने भी काम आपके हो गए या उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे वो अपना लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं. सच एज बाय कैचिंग फिशिंग हो गई आपकी, और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दी रिक्रिएटर्स, क्योंकि एक वाटर बॉडी है या एक नेचर का ऐसा ब्यूटीफुल एरिया होगा तो वहाँ रिक्रिएटर्स या पिकनिक गोअर्स की काफ़ी ज़्यादा स्कोप होने वाला है, तो वो उनको सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ से अपनी लिवलीहुड अर्न कर सकते हैं. एंड ऑल्सो टू दी एस्थेटिक ब्यूटी लवर्स, मीन्स मैनी पीपल love to admire and adore the beauty of the nature, so that's why they go for a visit to several places like that. That's why the people over there which are living in a circular pattern of the settlement, they can earn their livelihood by providing the services to these types of people. So I hope guys you got what exactly is the circular and semicircular pattern of settlement. Now moving on to another pattern, which is the star-like pattern of settlements. So guys, in the star-like pattern you will see the settlements which are star-shaped or star-like. So in the star-shaped settlements, houses is spread out along the sides of roads in all direction. तो दोस्तों अगर आप फिगर को देखें तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि एक सिंगल फोकल पॉइंट से या एक सेंटर से बहुत सारे डायरेक्शंस में रोड्स गई हुई हैं, और इन रोड्स के दोनों तरफ यानी ऑन बोथ साइड्स वी कैन सी द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द स्टार लाइक पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स. इट डेवलप ऑन द साइट्स एंड प्लेसेस वेयर द सेवरल मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स कन्वर्ज. तो बेसिकली ऐसा पैटर्न आपको उन जगहों पे देखने को मिलेगा या उन साइट्स पे देखने को मिलेगा जहाँ पास कई सारी मेटल्ड या अनमेटल्ड रोड्स कन्वर्ज हो रही हैं, यानी जो पक्की और कच्ची सड़कें हैं वो
जिस फोकल पॉइंट्स पे आके मिल रही हैं या कन्वर्ज हो रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो दैट विल फॉर्म द स्टार लाइक पैटर्न. So you are likely to find these settlements in the northwest Europe, Punjab province of Pakistan and the Satluj Yamuna plains. तो बेसिकली ये सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, साथ ही साथ जो पंजाब वाला एरिया है यानी पंजाब प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है ऑफ पाकिस्तान, एंड द सतलज यमुना प्लेन्स. सतलज यमुना प्लेन्स मतलब जो आपकी सतलज रिवर है जो कि नॉर्दर्न पंजाब से निकल के पूरा आपका पाकिस्तान में जा रही है एंड इज़ अ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर. तो इसके प्लेन्स में साथ ही साथ जो यमुना है उसके प्लेन्स में आपको ये स्टार लाइक पैटर्न देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग द ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स. एज यू कैन सी ओवर द फिगर विच इज़ गिवन ओवर हेयर, the shape of settlements clearly resembles the triangle with the base as well as vertex. So this triangular patterns of rural settlement generally develop at the confluence of rivers. जी हाँ दोस्तों, ये settlements के पैटर्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिवर्स आके आपस में कॉन्फ्लुएंस कर रही हैं, यानी जिनका संगम हो रहा है आपस में. रीज़न ये है कि जब दो रिवर आपस में मिलेंगी आके तो वो एरिया को कन्फाइंड करेंगी, और जब एरिया को कन्फाइंड करेंगी तो द पीपल आर बाउंड टू बिल्ड अप द सेटलमेंट इन दैट ओनली पर्टिकुलर एरिया एज गिवन ओवर हियर इन द फिगर. दैट्स व्हाई इट टेक्स द शेप ऑफ द ट्रायंगल. The lateral expansion of houses at the confluence is constrained by the rivers. Consequently, the settlement acquires a triangular shape. जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि triangular shape क्यों होता है, क्योंकि जो river के जो पूरा कोर्स है वो एक नैरो शेप में आके जब मिल रहा है तो वो एरिया को कन्फाइन कर रहा है, और बेस तो बड़ा है, साथ ही साथ आगे जाते समय वो पॉइंटेड हो जाता है. सो इट्स टेक द शेप ऑफ ट्रायंगुलर. दैट्स व्हाई द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन दैट एरिया इज नोन एज द ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट. ओके गाइस, फाइनली वी आर हियर विद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, दैट इज द नेबुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स. ऑलराइट गाइस, सो व्हाट इज द नेबुलर पैटर्न? Before understanding the nebular pattern of settlements, we need to understand what is the nebula. So, the nebular is taken from the word nebula. It means a nebula is a giant cloud of dust and gas which is rotating in space. So, basically nebula आपका एक बहुत ही बड़ा giant cloud हो गया जो कि dust और कई other particles और साथ ही साथ gases से बना हुआ है, and it used to rotate in space. And its shapes resemble somewhat like the circular or spiral shape which is been showing in the figure which has been provided to you on the screen. So in this nebular pattern, the shape nebula has been taken from there only. Now when the shape of settlement resembles a nebula, it is known as a nebular settlement. वही चीज़ है. Generally the size of a nebular settlement is small and they develop around the house of the village or around the mosque, temple or church. तो दोस्तों आमतौर पर ये बात देखी गई है कि जो साइज़ होती है नेबुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट की वो काफ़ी स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स, एंड दे यूज टू डेवलप, मतलब बेसिकली ये पाए कहाँ जाते हैं या किसके आसपास पाए जाते हैं. सो दे यूज टू डेवलप अराउंड द हाउस ऑफ द विलेज और अराउंड द मॉस्क, टेम्पल और चर्च. यानी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आपका चर्च हो गया, या कोई भी विलेज का हाउस हो गया, उसके अराउंड ये लोकलाइज्ड होगा या आपको उस साइड पे ये मिल सकते हैं. एंड यू विल फाइंड दीज टाइप्स ऑफ सेवरल विलेजेस इन द गंगा यमुना डोआब. मतलब जो गंगा और यमुना रिवर्स के बीच का जो पूरा फर्टाइल ट्रैक्ट है जिसे हम गंगा यमुना दोआब भी कहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पास इस पैटर्न के सेटलमेंट्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. तो दोस्तों ये था नेबुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
चीज़ें समझने में परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि दोस्तों ये कोई भी बहुत कठिन चीज़ नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप एकदम मज़े में पढ़िए, मज़ा आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें सफल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, जो कि सेकंड पार्ट था ह्यूमन सेटलमेंट सीरीज़ का। पहले पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज़ सेटलमेंट, ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। और इस पार्ट में हमने जाना द क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, फंक्शंस ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एंड द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों पार्ट से काफ़ी हेल्प हुई होगी, एंड यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी गुड आंसर. For example, you are having any doubt regarding any topic, you can let me know in the comment section. Our team will reach you and will certainly help you out. Alright guys, thanks for listening me so patiently and being with us till the end. I'll catch you very soon guys, next week with the new topic, that is the urban settlements, which will be a part of this series, which is the human settlements. In that we will discuss the various other dimensions and aspects of the urban settlements. Till then guys, stay tuned with us for more information and lot more to discover. Thank you so much for watching, and please subscribe to our YouTube channel and keep sharing. Thank you so much.